Hey everybody, welcome back to my channel. This is Avinash here and I hope you all are doing great and your studies are going well. Firstly, sorry for this video. It's a little bit late, but I have decided to upload this 2 days before, but due to some problem, I could not upload it. So, this video is basically about paper 1, that is your English. So, before starting this video, I want to tell you some important things. Firstly, tell me if you are comfortable with English language or not. If you are, then I will continue with this, and if you are not, then please comment down me below in the comment section, because as I have uploaded previous video, in that I have used Hindi language due to some reasons, because I was getting message that we are not getting English language properly, so please speak in Hindi so that we can understand very well. That's why that video was in Hindi language. Okay, so if you want to in Hindi language, so you can comment down me below. I'll continue in that language. I do not have problem with in both the languages. So yeah, please make me aware of this thing, so that see, this platform is basically for you. I have created this channel for you to be help out. So I do not want that due to language problem you just left out this channel. Okay, so yeah, so now I want to tell one more thing, that I have decided to make a series of paper 1, paper 2 and paper 3 of series. So I will cover paper 1 in this video, that is your English, and paper 2, that is your GS. There will be 5 to 6 subjects in your GS. So for each and every subject I will try to make a separate video in detail, so that your all doubts would be clear in those videos. And same as for the paper 3, that is maths. So yeah, this video is basically for paper 1, that is your English. If there is something remaining after this video, so you can ask me and I'll try to clear all your doubts. Okay, here I am going to give you an overview of this video, so that if you find it reliable, so you can continue this video. Secondly, the syllabus of English, and what are the most important topics that you have to cover, and from which sources you can refer your preparation for CDS. And yes, and finally I will give you some tips as well. So yeah, now let's start this video. तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं। 120 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एंड फॉर 120 क्वेश्चंस आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। सो इस हिसाब से आपको एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर भी पूरा नहीं मिलने वाला। सो ईच क्वेश्चन you will have to get 0.83 mark, and for a wrong question 0.27 marks will be deducted, and time will be 2 hours given to you. So अगर हम 2 आवर्स देखें तो 120 मिनट्स हो गए एंड 120 आपके क्वेश्चंस हो गए, तो आप खुश हो जाएंगे कि वाओ, हमें एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मिल रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट, आपको पूरा 1 मिनट का टाइम भी नहीं मिलने वाला, बिकॉज़ आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड है, यानी कि आपको OMR शीट पर मार्क करना होगा। एंड जब आपको OMR शीट पर मार्क करना होगा तो एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आपको लग जाएंगी 120 क्वेश्चंस को वहाँ जब आप फिल करोगे, इतना टाइम आपका मानकर चलो आपको लग जाएगा। सो आपको OMR शीट फिलअप करने की प्रैक्टिस भी करनी होगी अभी से ही। ओके, एंड एग्ज़ाम टाइम के बीच में आपके थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, सिग्नेचर्स वगैरह की, थंब इम्प्रेशंस टाइप से कुछ ऐसा भी होता है, तो आपका कुछ टाइम उसमें भी लग जाता है। तो एटलीस्ट आप अपने 15 मिनट्स डिडक्ट करके चलिए अभी से ही, तो आपको 1 आवर एंड 45 मिनट्स मिलेंगे। तो आपको इस टाइम के हिसाब से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। ऑलराइट, तो आपको अपनी स्पीड यहाँ पर मेंटेन करनी होगी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। सो हेयर इज़ योर सिलेबस। सो यहाँ पर जो भी टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में वो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। सो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यही टॉपिक इस बार आएंगे। वो हो सकते हैं कि यूपीएससी ये वाला टॉपिक छोड़ दे एंड ये ऐड कर दे, या फिर ये टॉपिक छोड़ दे, ये और कोई फिल इन द ब्लैंक्स वाला ऐड कर दे।
तो रैंडम होता है, कोई टॉपिक छोड़ दिया, कोई ऐड कर दिया, बट आपको सभी टॉपिक्स कवर करके चलना है, बिकॉज हमें नहीं पता कि वो कौन सा टॉपिक देने वाले होते हैं। बट कुछ एक टॉपिक्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, लाइक और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, आपका जो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस होता है, PQRS वाला जो बोलते हैं क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं आपके। एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए, ओके, एंड स्पॉटिंग द एरर हो गया, ये कुछ एक फिक्स होते हैं जो ऑलमोस्ट हर बार आते ही हैं, तो आपको इन पर फोकस तो करना ही है। एंड यस, इंग्लिश का पेपर आपका इतना टफ़ भी नहीं आता, इतना इजी भी नहीं आता, मॉडरेट लेवल का आता है, बट ये टफ़ तब बन जाता है तब आपका पेपर पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि पेपर काफ़ी लेंदी होता है इंग्लिश का पेपर। तो आपका यहाँ पर टाइम बहुत कंज्यूम होता है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी इसके लिए, ओके। सो मैंने जो आपका ये सिलेबस है इसको भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उससे पहले आप यहाँ पर सोर्सेज देख लो कि कौन कौन से सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट वन मैंने पाथफाइंडर बुक को रखा है। इस बुक को मैंने क्यों रखा है, मे बी कुछ कैंडिडेट्स को ये बुक अच्छी नहीं लगती हो, बट बीइंग अ फ्रेशर आप ये बुक प्रेफर ज़रूर करो, बिकॉज़ मैंने भी सबसे पहले यही बुक परचेज़ की थी, एंड इस बुक से मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। मुझे देखो, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी गिवन होते हैं, और बाकी टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में भी कवर्ड हैं वो वाले, एंड अलग से प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस गिवन होते हैं। मे बी कुछ एक के आंसर्स गलत हो जाते हैं, नॉट टू वरी, बट आपको ये पता चल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं एंड किस लेवल का पेपर होता है, ओके। सो आपकी अच्छी खासी यहाँ से प्रैक्टिस हो जाती है। एंड वन अनदर थिंग इज़ दैट कि इसमें जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए होते हैं वो सारे टॉपिक्स इन्होंने कवर किए होते हैं। लाइक कुछ एक टॉपिक होते हैं जो पहले आते थे अब नहीं आते, एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते, तो इन्होंने वो टॉपिक्स भी कवर किए हुए हैं। मे बी अगर बाय चांस कभी उनमें से कोई टॉपिक रिपीट होता है तो आपका बेनिफिट हो जाएगा, ओके। एंड इसके ऊपर भी मैं सोच रही हूँ, पाथफाइंडर बुक के ऊपर मैं इसका रिव्यू करूँ, एंड अगर आपको लगता है कि रिव्यू करना चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना, ओके। नेक्स्ट बुक इज़ SP बख्शी एंड प्लिथ टू पैरामाउंट एंड ल्यूसेंट। सो मोस्टली कैंडिडेट्स इन बुक्स को प्रेफर करते हैं टू ब्रश अप देयर रूल्स एंड बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर, ओके, and for practicing, and you can prefer online sources as well, okay. Now एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मैंने जो वहाँ पर जो टॉपिक्स थे उनको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। लाइक दिस इज़ द ग्रामर सेक्शन, स्पॉटिंग द एरर है, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से आते हैं, ओके। सो इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखो, ग्रामर आपको ऑलमोस्ट पूरा कवर करना पड़ेगा। नाउन हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल्स, एंड ऐसे जो भी रूल्स वाले टॉपिक्स आपको सब पढ़ने पड़ेंगे। अपनी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे, ओके। वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गए। तो आपको ये सारी बेसिक्स हैं ग्रामर की, आपको पढ़नी पड़ेंगी। एंड आप ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया एंड इसको फिर छोड़ दिया, नहीं, इनको टाइम टू टाइम आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा, बिकॉज़ जब आप एक बार पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ याद है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप भूल जाओगे, इसलिए आपको टाइम टू टाइम इनको रिवाइज भी करना पड़ेगा, ओके। सो नाउ आई मूव टू नेक्स्ट। सो हियर इज़ योर वोकैब सेक्शन। सो वोकैब सेक्शन में आपका क्या आता है, एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम एंड फ्रेजेस एंड स्पेल चेक या करेक्शन। सो ये भी आपके ईच टॉपिक से आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी स्कोरिंग जो टॉपिक होता है ये उसमें से आता है। ये ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स इसमें मार्क्स नहीं जाने देते, ओके। सो आप भी ट्राई करना कि इसमें अपना मार्क्स एटलीस्ट बिल्कुल ना जाने दो। सो एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम एंड फ्रेजेस एंड स्पेल चेक। सो अभी अपना जो CDS2 2020 का हुआ था उसमें भी आपके स्पेल चेक आए थे, एंड अभी जो CDS1 हुआ था 2021 का उसमें नहीं आए थे।
सो मैंने बताया कि रैंडम होता है, फिक्स नहीं होता कि पिछली बार जो आ गया वो इस बार भी आए, तो आपको अपने सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। सो आप ये कहाँ से करेंगे? देखो, इनका सबसे बेस्ट सोर्स है, आप एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना इंग्लिश के, आप वहाँ से उठाओ, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वहाँ से क्वेश्चंस आपको रिपीट भी हुए मिलेंगे एंड ऑलमोस्ट आप कवर कर लोगे वहाँ से। तो आपको ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा इनको कलेक्ट करने के लिए। और बाकी आपका पाथ फाइंडर में जो गिवन होंगे प्रीवियस ईयर, आप एक बार वो कर लेना। ओके, नाउ आगे देखते हैं आपका रीडिंग सेक्शन। जो आपका रीडिंग सेक्शन है ये सबसे ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है पेपर में, क्योंकि इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, आपके वर्ड या सेंटेंस अरेंजमेंट होता है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस। आपका ये जो PQRS वाला होता है ये तो पूरा स्टेंचा भर भर के आता है एंड ये इतना टाइम कंज्यूम कर लेता है। बट अगर आपकी एक बार कमांड हो गई, आपको अगर आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे ना कि क्या बोलना चाह रहा है इस स्टेंजा में, अगर आपने उसको लिंक कर लिया तो आपको बहुत ईजी भी लगेगा। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अभी अपना CDS 1 2021 में ये आया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 आए थे आई गेस, यस 2 ही आए थे। ओके, PQRS वाले भी 10-10 क्वेश्चन आते हैं। सो आप देख सकते हो कितना टाइम कंज्यूम होने वाला है आपका यहाँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपका जो रीडिंग स्किल है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। रीडिंग स्किल में क्या आता है? देखो, रीडिंग स्किल में होता है कि आप जो पढ़ रहे हो आप उसको हैंड टू हैंड लिंक कर पाओ कि क्या बोलना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है। ओके, क्योंकि देखो आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो इतना टफ नहीं बनाया जाता, ये आपका मॉडरेट लेवल का होता है। एंड इसमें जो UPSC है वो एक्सपेक्ट करता है कि आप CDS के कैंडिडेट हो, तो आपको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की वो आपको होनी चाहिए। तो वहाँ पर ये चेक करना चाह रहे होते हैं इनके थ्रू। ओके, तो इसलिए वो इतना हार्ड भी नहीं बनाते, बट वो लेंथी होता है, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इंसान फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है। एक तो टाइम का प्रेशर होता है, ऊपर से इतने लेंथी होता है, तो माइंड थोड़ा सा वहाँ पर जाम हो जाता है एंड आते आते क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। तो ये इस पर आपको कमांड करनी बहुत अच्छी होती है। अगर आपको ये अच्छी कमांड इसकी हो जाती है तो आपका यहाँ से नंबर नहीं जाने वाला। कैंडिडेट्स, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो इनमें एक नंबर भी नहीं जाने देते। तो ये आपका, अगर आपने अपना वीक पॉइंट बना लिया तो आपके नंबर यहाँ से जाएंगे। अगर आपने इसी पर वर्क करके इसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया तो आपका यहाँ से एक नंबर भी नहीं जाने वाला। सी, आप इंग्लिश में आराम से 80+ स्कोर कर सकते हैं एंड आपके पास 6 मंथ्स का टाइम है। एंड आई गेस ये बहुत ही सफिशिएंट टाइम होता है CDS की प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज इनफ टाइम होता है यार, आप कर सकते हो बिल्कुल आराम से। अगर आपकी रीडिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं भी है तो भी आप अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप क्या करो, अगर आपको न्यूज़पेपर अवेलेबल हो जाता है, द हिंदू न्यूज़पेपर, आप इसको प्रेफर कर लो। एंड इंडियन एक्सप्रेस, सॉरी, आपका जो इंडियन एक्सप्रेस वाला है न्यूज़पेपर, अगर आपको वैसे बाय हैंड नहीं मिलता है तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आप उनकी रीडिंग लगाओ। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो आप कोई नॉवल पढ़ लो, नॉवल भी अच्छा नॉवल पढ़ो जहाँ से आपको मोटिवेशन मिले, कुछ इंस्पिरेशनल या फिर कुछ नया आपको सीखने को मिले। तो आपका बेनिफिट ये होगा कि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी और आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, जिससे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है वो बिल्डअप हो जाएगा, जो कि आपका SSB में बहुत हेल्प करने वाला होगा। ओके, तो रीडिंग स्किल आप अपने यहाँ से बिल्डअप कर सकते हैं। एंड या आई गेस मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, सो अब मैं इसको कंक्लूड कर रही हूँ। देखो, आपको सीधी सी बात है, ग्रामर पोर्शन आपको अच्छे से पढ़ना होगा, सारे रूल्स अपने जितने भी हैं क्लियर कर लो अच्छे से। एंड ये टॉपिक्स हैं, ये इजी हैं, आप थोड़ा सा इन पे एक बार ध्यान देकर पढ़ लेना।
आराम से हो जाएगा, ठीक है। इनको आपको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करना होगा, बिकॉज़ रूल्स हैं, कुछ एक वर्ड्स होते हैं, रूल्स में याद करने होते हैं, दिमाग से निकल जाते हैं, तो उनको टाइम टू टाइम आपको रिवाइज़ करना होगा। ऑलराइट, वोकैब के लिए आप प्रीवियस ईयर कर लो, किसके, एसएससी के जितने भी हैं, सीजीएल के, सीएचएसएल के एंड सीपीओ के जितने भी हैं एसएससी के, प्रीवियस ईयर एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम, फ्रेज जो भी हैं, एंड स्पेल चेक वगैरह। स्पेल चेक इतना टफ भी नहीं आता, बहुत इजी आता है, जो हम डेली लाइफ में जो वर्ड्स देखते हैं। लाइक एक बार तो निमोनिया आया था, तो एक सिंपल सी बात है इसमें, निमोनिया बोलते हैं तब ऐसा लगता है कि एन से स्टार्ट हो रहा होगा, लेकिन इसमें इसका जो वर्ड है वो पी से स्टार्ट होता है। तो ऐसी कॉमन सी वर्ड होते हैं जो पूछे जाते हैं। ओके, सो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है यहाँ पर। यहाँ से आप अपना वोकैब पढ़ेंगे, ठीक है। एंड रही बात रीडिंग सेक्शन की, अगर आप रीडिंग के हैबिचुअल नहीं हैं तो आपको थोड़ी सी आदत डालनी होगी, नहीं तो आपको पेपर में प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, क्योंकि वहाँ पर आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं की होगी ना इनकी कॉम्प्रिहेंशंस की एंड PQRS वाले जो ये सेंटेंस आते हैं इनकी, तो वहाँ पर समझ नहीं आएगा कुछ भी। तो अच्छा होगा कि आप अभी से प्रैक्टिस कर लें। इतना टफ नहीं होता, बिल्कुल ईजी होता है, बस आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। ओके, सो बस मोटी मोटी बात ये है कि मैंने जो बताया आप इन पे वर्क कर लो, आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। एंड मैंने बताया 80+ स्कोर करने की कोशिश करो, बिकॉज स्टूडेंट्स लाते हैं 80+ मार्क्स लेके आते हैं। एंड इस बार जो CDS 1 हुआ था वहाँ तो 85+ तक स्कोर किया है। ओके, सो या I hope you got all these informations very well, and still you have any doubt, then my comment section is open 24 hours into 7. And see, English is a really good subject and you do not skip it at anyhow, because it is a scoring subject and it will help you to get the rank as well. So it is very important to cover all these topics very well that I have mentioned you, and you have to set a target of at least 80+ marks in English subject. If you score these marks na, then you are definitely going to crack this exam. Its level always remains easy to moderate level, and it is not so tough exam, but the problem is that it is very lengthy, so it become difficult to cover in 2 hours. So how will you cover that? I have told you that practicing, practicing and practicing. Okay, so yeah, I hope this video was helpful for you. In next video I'll be telling you about the current affairs. Actually I have made a video on current affairs. If you want to see that, so I'll provide the link in the description box. You just go once through that video. And yes, in next video I'll provide a proper video of current affairs, and I'll tell you the sources as well from where you can cover, and that source is 100% reliable. You can trust that one. Obviously these sources I have told you are 100% reliable. You just go and prefer these. That's all about this video. I hope this video was helpful for you, and if it is, then do not forget to subscribe to my channel, and please share it with your friends and help them also. We will meet in next video. Till then, take care, bye bye, and Jai Hind.